The first question is what? How are SQL commands classified? I told you yesterday also that SQL commands are classified into the how many? There are 5 category. Which category is that? The one is the DDL, second is the DML, third one is the TCL, and there are these 3 commands. These 3 answer you have to write, but there is a control language and there is a some system control languages also. Okay. Transaction and this is the transaction control, this is the data manipulation, this is the DDL. So you just remember these 3 names. Okay, more than 3 is also available, but you have to mention only these 3. Okay, now what is the differentiate between this DDL and DML? I told you yesterday also what is the answer of this. DDL commands provide the data to create the table and drop the table and change the structure also, while DML commands provide the manipulations only. Means we can do the select, we can use the insert, and these options are available there. Insert, select, delete, update. These options are comes under the DML commands, while DDL commands provide the facility of create, alter, and drop. Okay. So this is the DDL and that is the DML. Okay. What is the update? What is the use of the update statement in SQL and how it is different from the statement alter table statement? So you all know update command is used to modify the record. Update command is used to modify the record, to change the value of the record. Okay, modify the record. You can say the while alter table command is used to change the structure of the table. Change the structure of table. The structure of table. These things you have to remember. The structure of table. First point you can say that, and second point you can say the modify. Update command is a DML command, while alter table is a DDL command. So these 2 points you have to make it for that. So remember these 2 points. Okay. Okay. And what is the next? Mr. Shankar created a table vehicle. Mr. Shankar is created the table vehicle, and now with 3 rows and 4 columns, and he added the 1 row. Means what is the name of the table? Table name is the vehicle, and now how many rows are there? The number of rows are 3 there, and how many columns are there? Number of columns are 4 there, and he added another 1 more row to it and deleted those. So added the 1 row. So how many rows are there? 4. Deleted 1 column. So how many columns are there? 3. What is the cardinality and degree? So we all know number of rows is called cardinality. Okay. So cardinality is the number of rows. Okay. And degree is the number of columns. So this is the number of degree and this is the number of cardinality. Means cardinality and degree. This is okay. Now you have to solve this question, GEM questions, and these questions we have already discussed yesterday in the class. So I think you all know about this. So you just try this answer. Okay, find out the answer, write down the solution of this. What is the first question? The question is that they ask you to display the name of all the items whose name start with A. All items which start with name A. This is the pattern matching question. So what we have to write? We have to write select name. Okay. Select name from GEM where name like a %. This is the solution of question number 1. To display the I code and I name of all items whose brand name is reliable or Costco. So this is also very easy question. You have to simply write here select I code, comma, I name. Achha, here I have to write I name and here also I have to write I name from GEM. Okay, whose brand name is reliable or Costco. So what you will write? Where brand name column is given. So what we have to write? Where brand name. Okay, where brand name, and then we are going to use the N clause. And what the options are given? Reliable or Costco. So we are going to write here reliable, and we are going to write here Costco also. Okay. Achha, this command, this questions you can solve with the help of the relational operator also.
and our logical operator also. We can use or and we can use equal to sign here. So how? So what you have to do, you have to just change the where clause. Which clause you have to change? You have to change the where clause only. So how you can change? After where you have to write, from here you can write this. Before where you have to write the same thing. ठीक है, बिल्कुल सेम लिखेंगे, लेकिन इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे where brand name is equal to reliable, ठीक है, और ब्रांड नेम इज इक्वल टू कॉस्को। तो ये कमांड भी लिख के आप चाहो तो रन करा सकते हो। तो दोनों ही ऑप्शन है, इन क्लॉज का यूज कर लो या और का यूज कर लो, ठीक है। तो दैट इज द ऑप्शंस हियर। तो दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते थे। एड अ न्यू, चेंज द ब्रांड नेम टू फिट इंडिया, फिट ट्रेंड इंडिया, वेयर आइटम कोड इज दिस। तो ब्रांड नेम को चेंज करना है। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। इसने दो क्वेश्चन सेलेक्ट बेस दे दिया, एक क्वेश्चन अपडेट दे रहा है, एक क्वेश्चन इंसर्ट दे रहा है। तो अपडेट कमांड चलाना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, अपडेट, टेबल का नाम दे दिया जिम, सेट, क्या करना है, ब्रांड नेम को चेंज करना है। क्या करना है ब्रांड नेम को, तो लिखेंगे सेट ब्रांड नेम इज इक्वल टू फिट इंडिया, फिट ट्रेंड इंडिया, ओके। तो फिट ट्रेंड इंडिया लिख दिया। अगर इतना ही लिख देंगे तो सभी रिकॉर्ड चेंज हो जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे वेयर क्लॉज लगाना पड़ेगा। वेयर आई कोड इज इक्वल टू G101 लिख के सेमीकोलन। तो इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा, अपडेट कमांड हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, मैं यहाँ पे इरेज करूंगा अभी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन? तो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कह रहा है हमें ऐड अ न्यू रो। अब नया रो ऐड करना है तो कौन सा कमांड चलाओगे, आप चलाओगे इंसर्ट इनटू कमांड। तो क्या लिखना है आपको, इंसर्ट, ओके, इंसर्ट इनटू, और क्या कमांड चलेगा, रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो टेबल का नाम हो गया जिम, और फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वैल्यूज, ओपन ब्रैकेट दे दिया, आइटम कोड क्या है, तो G107 लिख दिया, ओके। उसके बाद नाम क्या है, विवरो एक्सरसाइज, तो विवरो एक्सरसाइज कर दिया। उसके बाद अमाउंट कुछ दे रहा है, यहाँ पे प्राइस दे रहा है 21,000 लिख दिया। उसके बाद ब्रांड नेम दे रहा है, तो ब्रांड नेम को लिख दिया GTC फिटनेस, ओके। तो इस तरीके से आप लिख के इसको बंद कीजिए और यहाँ पे सेमीकोलन डाल दीजिए, रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। तो ये चार जो कमांड आपको मैंने बताए हैं ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड है। ऐसे ही कमांड होंगे और इस तरह के क्वेरी पूछे जाएंगे आपसे। कुछ वेयर बेस्ड, सेलेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, कुछ अपडेट का क्वेश्चन होगा, कुछ इंसर्ट का क्वेश्चन होगा। तो इसको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सब आप देखिए, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, मैं आपको बस डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या है कि एनीबॉडी कैन गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द कार्डिलिटी एंड डिग्री ऑफ द टेबल क्लाइंट। क्या कार्डिलिटी और क्या डिग्री होगा टेबल क्लाइंट का। क्वेश्चन देखो, कार्डिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, 2 रो था 4 कॉलम था। एक बार फिर से याद कर लो, कार्डिलिटी क्या होता है, कार्डिलिटी का मतलब, कार्डिलिटी का मतलब होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। और अगर रोज याद नहीं हो टेक्निकल भाषा में जिसे हम टपल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि व्हाट इज दिस, दे आर आस्किंग, ओके, व्हाट दे आर आस्किंग, he added 2 more rows to it and deleted 1 column। अभी बता रहा हूँ मोहम्मद समीर, जस्ट वेट, आई एम टेलिंग यू। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले समझिए इस चीज को, क्लाइंट टेबल के अंदर में नंबर ऑफ रोज कितने हैं। अच्छा, डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। समीर इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अभी, मल्टीप्लाई जब 2 रो का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तब करते हैं, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितना था पहले से, रोज यहाँ पे दे रखा है 2, और कॉलम्स कितने थे पहले से, कॉलम्स दे रखा है 4। कहता है 2 कॉलम 2 रो को ऐड कर दिया गया, तो 2 + 2 हो गया, तो कितना हो गया 4, एंड डिलीटेड 1 कॉलम, 1 कॉलम को डिलीट कर दिया गया, तो कॉलम कितना रह गया 3। अब पूछ रहा है कार्डिलिटी, तो कार्डिलिटी क्या हो जाएगा 4 हमारा क्या हो गया कार्डिलिटी, क्योंकि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, ठीक है, वेरी गुड। और डिग्री कितना हो जाएगा 3, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रह गए इस टेबल के अंदर में, 3 रह गए। हम बस, हमारे पास सिर्फ एक क्लाइंट टेबल ही तो है और तो कुछ है नहीं हमारे पास, तो हम क्लाइंट टेबल के ऊपर ही काम कर रहे हैं।
हाँ, जो आपने 8 का जवाब दिया वो तब होता जब कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ हमें कोई काम करना होता, तो ऐसे केस में हमें देखने की जरूरत थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फिर से आप देख सकते हैं, आपका वही फिटनेस टेबल जैसा क्वेश्चन। देखो अभी हमने जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो आसान है इस क्वेश्चन को करना, ऐसा नहीं कि बहुत टफ टास्क है ये क्वेश्चन। तो आप एक बार ट्राई कीजिए, फटाफट इसका आंसर को चैट बॉक्स में लिखिए आप लोग। डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स विद प्राइस मोर देन 20,000, ठीक है। मेरे से पहले कौन लिख के मुझे रिप्लाई दे रहा है, कम ऑन फास्ट। डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है एक बार मैं चेक कर लूं, मुझे तो नाम ध्यान नहीं आ रहा है, टेबल का नाम दिख भी नहीं रहा है तो ध्यान कैसे आएगा। अच्छा फिटनेस है, टेबल का नाम क्या है, फिटनेस, ओके। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द टेबल, टेबल नेम इज द फिटनेस हियर। तो क्या लिखना है हमें, चलो ठीक है, तो फ्रॉम फिटनेस, और प्राइस मोर देन 20,000 कह रहा है, तो क्या लिखना पड़ेगा, वेयर प्राइस ग्रेटर देन 20,000 से मोर देन कहा था तो हम ये लिख देंगे। डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स बाय मैन्युफैक्चरर A1, जिसके मैन्युफैक्चर के नाम में A1 लगा हुआ हो। तो A1 मैन्युफैक्चर वाला नाम में लगा हुआ नहीं, A1 है ही हमारे पास। चलो मेरे से पहले सॉल्व करके दिखाओ। सेलेक्ट डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, तो क्या लिखोगे, सेलेक्ट P नेम, ठीक है, फ्रॉम फिटनेस, वेरी गुड। चैट बॉक्स में जवाब डालो फटाफट, यस हाँ मैन्युफैक्चरर, चैट बॉक्स में जवाब डालिए इसको आप सब, जो भी आपको आ रहा है समझ में, A1, ठीक है। So this is also the easy question. To change the price data of all the product by applying 25% discount reduction. अब सभी के प्राइस को चेंज करना है, तो चेंज करना है तो कौन सा क्वेरी चलेगा, मैंने बताया था ना, अपडेट कमांड चलेगा। कौन सा कमांड चलेगा यहाँ पे, अपडेट कमांड चलेगा। तो अपडेट कमांड चलाना है, तो लिखिए अपडेट कमांड, यस अपडेट। अपडेट के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्या है हमारे पास, फिटनेस, तो फिटनेस लिख दिया। इसके बाद क्या यूज करते हैं, सेट। अब क्या चेंज करना है, 25% डिस्काउंट रिडक्शन देना है, मतलब प्राइस में 25% डिस्काउंट रिडक्शन, प्राइस को कम कर देना है। तो क्या लिखना पड़ेगा, प्राइस इक्वल टू प्राइस माइनस प्राइस मल्टीप्लाई 0.25। 25% का डिस्काउंट देना है ना, तो 25% का मतलब क्या हो गया, 25/100, एंड 25/100 को हम 0.25 लिख देंगे ना। और x का 25% लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, x मल्टीप्लाई 25/100 ही तो करते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिख दे x मल्टीप्लाई 0.25, तब भी तो काम चल जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो दैट इज द पॉइंट। चलो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दो, रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो आसानी से हो जाएगा। सेम क्वेश्चन था, अब मैं सिमिलर टाइप क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, अभी आपके लिए रहने दूंगा ये क्वेश्चन, सो दैट यू कैन ट्राई, ओके। पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आपके साथ, इंसर्ट इनटू फिटनेस, ओके, इंसर्ट इनटू फिटनेस, और क्या वैल्यूज है, वैल्यूज लिख दीजिए। प्रोडक्ट, पहला तो प्रोडक्ट कोड होगा ना, तो इसने प्रोडक्ट कोड क्या डाल रखा है, इट्स अ P7, ठीक है, ये P7 है। क्या है ये प्रोडक्ट कोड, P7। उसके बाद चलो वही नाम दे देते हैं, विब्रो एक्सरसाइज, ठीक है, जो भी नाम है पूरा नाम लिख दीजिएगा, 28,000, और कंपनी का नाम क्या है, A1। हो गया रिकॉर्ड इंसर्ट, तो टेक अ स्क्रीनशॉट, और ये सॉल्यूशन हो गया। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करेंगे, अभी मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी रहेगा, सो दैट यू पीपल विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। और जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक समझ में नहीं आएगा। ऐसे तो आपको लग रहा होगा कि इट्स अ वेरी इजी, क्योंकि सर सॉल्व कर रहे हैं तो इजी ही होता है, जब तक टीचर सॉल्व कर रहा होता है तब तो क्वेश्चन आसान ही होता है। एंड व्हेनेवर यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्वेश्चन हार्ड हो जाता है उसी समय, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से सॉल्व करेंगे। ऑल इन्फॉर्मेशन, जैसे इसने ऑल इन्फॉर्मेशन कहा तो सेलेक्ट के साथ आप स्टार नहीं, ये मत लगाना, ठीक है, किसी कॉलम का नाम मत लगाना, आप सीधा स्टार लगा देना। ऑल इन्फॉर्मेशन का मतलब हो गया सेलेक्ट, स्टार कर देंगे,
बाकी आप देख लेना स्विमिंग कोचेज का। टू लिस्ट द नेम ऑफ ऑल कोचेज, अब यहाँ पे नेम कह रहा है तो नाम दिखाओ विद देयर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, तो मतलब नाम भी आएगा और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट भी आएगा, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में कह रहा है ना, विद देयर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है, तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो आप क्या यूज करोगे, आपको भी मैंने पीछे बताया था, एक क्लॉज होता है हमारा ऑर्डर बाय, हम ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे, अगर डाउट रह जाएगा तो मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा, सो आप डोंट माइंड, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं लिख देता हूँ सो दैट कि यू कैन सॉल्व। ओके, तो क्वेश्चन है सेलेक्ट द नेम, तो क्या लिखना होगा, सेलेक्ट कोच नेम, कोच नेम, साथ ही में डेट ऑफ अपॉइंटमेंट दिखा दो इसको, डेट ऑफ एपीपी भी दिखा दो, किस टेबल से दिखाना है, फ्रॉम क्लब टेबल से। ऑर्डर बाय क्या करेंगे, ऑर्डर बाय डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कर देंगे, डेट ऑफ एपीपी, और क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर कह रहा है तो डीएससी लगा के सेमीकोलन लगा दो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डीएससी सेमीकोलन, हो गया सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे क्योंकि इजी क्वेश्चन है। डिस्प्ले रिपोर्ट कह रहा है, अच्छा देखो रिपोर्ट दिखाना है, अब रिपोर्ट दिखाना है ना, तो यहाँ पे मैंने बताया था ना हम लोग सेलेक्ट कमांड से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते थे कि सेलेक्ट प्राइस मल्टीप्लाई 3 फ्रॉम, कोई भी टेबल का नाम दे दिया लाइक दिस वे, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यही कंसेप्ट जो है ना वो यहाँ पे यूज होने वाला है आपका, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 मैं एक बार बता देता हूँ सो दैट कि आप नेक्स्ट टाइम आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, दिस ऑल क्वेश्चंस यू हैव टू ट्राई वंस बाय योर ओन सेल्फ, इसकी ईमानदारी तो भाई चाहिए मुझे, एटलीस्ट यू पीपल हैव टू रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस ऑल क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, एक बार तो जरूर सॉल्व करना, ओके। ऐसे नहीं सोचना कि सर ने कर दिया तो हमें करने की जरूरत नहीं है, यू प्लीज डोंट फॉरगेट टू सॉल्व इट, ओके। अब आपको क्या करना है, रिपोर्ट दिखानी है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सेलेक्ट कमांड चलाओ, सेलेक्ट रिपोर्ट दिखाना है, क्या क्या रिपोर्ट में दिखाना है देखना, कोच नेम दिखाना है, तो चलो कोच नेम को लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पे दिखाना है, तो चलो पे भी लिख देते हैं, पे ही है ना, हाँ। उसके बाद इसने कहा एज दिखाना, चेक कर लेना उस नाम का कॉलम है या नहीं है, ऐसे तो मैं देख चुका था लेकिन फिर भी आप देख लेना। एंड बोनस भी दिखाना है, तो बोनस जो होगा, तो बोनस नाम का देखो कहीं पे कोई कॉलम नहीं है ना, तो पे का ही बोनस निकलेगा, तो इसने फॉर्मूला दे दिया 50% ऑफ पे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पे मल्टीप्लाई 50% के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 0.15 से, और यहाँ पे अब हम कॉलम एलियास यूज करेंगे और इसका नाम दे देंगे बोनस, क्या नाम दे देंगे, बोनस। पे मल्टीप्लाई 0.15 को जब ये आउटपुट में आएगा तो पे मल्टीप्लाई लिखा हुआ नहीं आएगा, बोनस लिखा हुआ आएगा, तो ये चीज ध्यान रखना है। फ्रॉम, अच्छा इसने कहा फॉर ऑल द कोचेस, सभी कोचेस का दिखाना है, तो कोई कंडीशन नहीं है, फ्रॉम क्लब टेबल, बस हो गया सॉल्यूशन। तो आप देख लीजिए, आपको मैंने सॉल्व कर ही दिया ये क्वेश्चंस को, तो उम्मीद करते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो एक बार ट्राई कर लीजिएगा आप सभी लोग, ओके। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सिक्वल कमांड है, स्टूडेंट टेबल के लिए आपको कुछ कमांड लिखना है, और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल स्ट्रीम्स, लिस्ट द नेम ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर इन 12th क्लास एंड लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एवरेज मार्क्स, या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आप खुद से करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रहने दिया है 100%, जिस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करोगे। अब अगले क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज फॉरेन की, तो फॉरेन की का डेफिनेशन मैंने बताया था ना, क्या होता है, क्या होता है फॉरेन की का डेफिनेशन, 2-3 पॉइंट ध्यान रखना। पहला पॉइंट क्या बोला था याद रखने के लिए, दिस इज अ नॉन की एट्रीब्यूट, पहला पॉइंट क्या याद रखना है आपको, ये नॉन की एट्रीब्यूट है। दूसरा पॉइंट क्या रखना है, विच वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द, वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द, डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अदर टेबल, प्राइमरी की ऑफ अदर टेबल। कई बार ना ये पूछ देता है पर्पस क्या है, why we have to create the foreign key, तो उस केस में ध्यान रखना है जो इसका पर्पस है ना, वो पर्पस होता है टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप, ठीक है। हाउ डू यू डिफाइन द फॉरेन की, तो फॉरेन की डिफाइन करने के लिए हमको क्या है, एक एग्जांपल करके दिखा देना कि क्रिएट टेबल दिस दिस दिस, और लास्ट में यहाँ पे फॉरेन की FOREIGN फॉरेन की, किसी कॉलम का नाम दे दिया, फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा, रेफरेंसेस, और रेफरेंसेस के बाद आप क्या करोगे, आप मास्टर टेबल का नाम लिख देना, ठीक है, मास्टर टेबल जिसके साथ रिलेट करना है, और मास्टर टेबल का वो कौन सा कॉलम है जिसके साथ रिलेट होगा उस कॉलम का नाम लिख देना, बन गया फॉरेन की, ठीक है।
इसके बाद कहता है कि हाउ इज फॉरेन की कमांड डिफर फ्रॉम प्राइमरी की। तो फॉरेन की में किसी तरह का कंडीशन अप्लाई नहीं होता है, ये रिलेशनशिप बनाता है। जबकि प्राइमरी की में क्या है हमारा कि हमको यूनिक वैल्यू रखना होगा, नल वैल्यू रखना होगा। जबकि फॉरेन की में आप डुप्लीकेट वैल्यू भी रख सकते हो और नल भी रख सकते हो। प्राइमरी की में कहता है कि नल नहीं होना चाहिए और यूनिक वैल्यू होना चाहिए। रिलेटेड टू द प्राइमरी की कैसे रिलेट होता है, तो ये दोनों एक दूसरे से इसलिए रिलेटेड है कि विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल। दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें फॉरेन की आवश्यकता होती है। दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अस। ओके, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट कमांड? नेक्स्ट कमांड इज व्हाट आर द कांस्टेंट्स। तो मैंने पहले बता दिया था कांस्टेंट्स क्या होता है, कंडीशंस होता है जो हम कॉलम के ऊपर अप्लाई करते हैं। कॉलम कांस्टेंट्स किसको कहते हैं? जब कॉलम के डेफिनेशंस के टाइम में कॉलम के नाम के आगे ही कांस्टेंट्स का नाम लिख देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड कॉलम कांस्टेंट्स। इट इज अप्लाई ऑन द वन कॉलम। कॉलम कांस्टेंट इज यूज्ड टू अप्लाई ऑन द वन कॉलम, while table constants are used to apply on a multiple columns simultaneously. How are these two different? अच्छा, यहाँ पे इसने पूछा है टेबल कॉन्स्टेंट्स क्या है, बता दिया मैंने। टेबल कॉन्स्टेंट्स होता है विच अप्लाई ऑन द मल्टीपल कॉलम्स। कैसे डिफरेंट है? तो ये सिंगल कॉलम पे अप्लाई होता है, वो मल्टीपल कॉलम पे अप्लाई होता है एक साथ। इंसर्ट दिस रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स टेबल में आपको एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो ये इंसर्ट ऑल दोज रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल अकाउंट्स इनटू टेबल पेंडिंग फ्रॉम अमाउंट आउटस्टैंडिंग इज मोर देन 10,000। अब देखो, ये मैंने बताया था, एक कमांड बताया था कि हम एक टेबल से दूसरे टेबल में भी रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला कमांड चलेगा यहाँ पे। all those records of accounts table pending into the table pending। तो तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पे लिखोगे टेबल क्रिएट करना है, या क्रिएट कर लो, या मान के चलो कि टेबल क्रिएटेड है। अगर टेबल क्रिएटेड है तो फिर ये कमांड लिख देना, इंसर्ट इनटू पेंडिंग। ठीक है, और उसके बाद आप चला देना यहाँ से सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट। ठीक है, वेयर अमाउंट आउटस्टैंडिंग, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, अमाउंट आउटस्टैंडिंग ग्रेटर देन 10,000 और सेमीकोलन लगा देना। यहाँ पे 10,000 लिख के सेमीकोलन लगा देना। हो गया। इंक्रीज द सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय, अपडेट कमांड चला देना। एड ए कॉन्स्टेंट्स एनी ग्रेड टेबल एम्प्लॉय एंड डिक्लेयर्स कॉलम ग्रेड नॉट नल। तो कहता है कि टेबल एम्प्लॉय में एक कॉन्स्टेंट्स करना है और क्या बताना है उसको, नॉट नल कॉन्स्टेंट्स अप्लाई करना है। तो कॉन्स्टेंट्स ऐड कर देना यहाँ पे। ड्रॉप द टेबल, तो ड्रॉप कमांड यूज हो जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन करना है किसके इसके बीच में, ड्रॉप टेबल और ड्रॉप डेटाबेस के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये टेबल को डिलीट करेगा, ये इंटायर डेटाबेस को। अगर एक डेटाबेस डिलीट होता है ना, तो उसके अंदर के सारे टेबल भी डिलीट हो जाएंगे। और अगर टेबल डिलीट होता है तो सिर्फ एक टेबल डिलीट होगा और उसके अंदर के रोज डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, ड्रॉप टेबल एंड ड्रॉप क्लॉज ऑफ ऑल्टर टेबल। देखो, ड्रॉप टेबल से तो पूरा टेबल डिलीट होता है, लेकिन ड्रॉप क्लॉज ऑफ ऑल्टर टेबल से हम किसी एक कॉलम को डिलीट करते हैं। समझ गए? एक टेबल के अंदर में कई सारे कॉलम हो सकते हैं। तो अगर आपने ड्रॉप टेबल कमांड दिया तो ये पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन ऑल्टर टेबल ड्रॉप क्लॉज यूज किया तो आप किसी एक कॉलम को डिस्ट्रॉय कर दोगे, टेबल एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, Mr. Mittal is using a table with the following columns. अब ये columns है. He need to display the name of the students who have not been assigned any stream or having the assigned stream name ends with the computers. तो अब यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो नॉट असाइंड होगा, तो नॉट असाइंड में क्या हो जाएगा, तो वही इज नल लगाने पड़ेंगे। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। नीड्स टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। तो क्या करोगे, आप लिखोगे यहाँ पे सेलेक्ट नेम, नेम ऑफ द स्टूडेंट डिस्प्ले करना है। टेबल का नाम क्या है भाई, टेबल नेम कुछ नहीं दिया है ना, चलो तो स्टूडेंट मान लेते हैं। ओके, फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम का टेबल है। अब इस पे कंडीशन क्या चलेगा, हु हैव नॉट बीन असाइंड एनी स्ट्रीम। तो क्या लिखोगे, वेयर स्ट्रीम आईडी असाइन, अगर कोई स्ट्रीम असाइन होगा तो उसका आईडी होगा, तो वेयर स्ट्रीम आईडी इज नल, जिसको नहीं असाइन किया गया हो। और दूसरा इसने कहा, और साइन स्ट्रीम नेम जो होगा वो कंप्यूटर्स होना चाहिए, एंड्स विद कंप्यूटर होना चाहिए। और स्ट्रीम नेम, ठीक है, स्ट्रीम नेम यहाँ पे लाइक क्लाउड चला देना। और फिर क्योंकि कंप्यूटर से एंड होने के लिए कह रहा है, तो परसेंट के बाद कंप्यूटर्स लिख देना, परसेंट के बाद कंप्यूटर्स लिख देना, सिंगल कोट डाल के फिर यहाँ पे सेमीकोलन डाल दिया। ठीक है, एक तो सिंगल कोट है हमारा और एक सेमीकोलन है, ध्यान रखना। एक हमने यहाँ पे सिंगल कोट दिया है, ये सिंगल कोट हो गया और ये सेमीकोलन हो गया। ठीक है, गॉट इट। तो असाइनमेंट में शेयर करूंगा,
और इसको सॉल्व करना है इन सारे क्वेश्चंस को। अब इसने एक कमांड लिखा था, ये बोल रहा था इसमें करेक्शन करने के लिए हमें, तो मैंने बता ही दिया आपको। अब देख लो करेक्शंस क्या हो सकता है, क्या करेक्शंस होता है, क्या कह रहा है ये, इसने एक कमांड दे रखा है, चेक करो यहाँ पे क्या कह रहा है। सेलेक्ट नेम कॉमा क्लास, क्लास दिखाने के लिए कहा था क्या, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, उसने तो शायद नाम ही कह रहा था। डिस्प्ले नेम ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव बीन नॉट आना, तो सिर्फ नाम दिखाना था, तो क्लास की हमें जरूरत नहीं है, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो स्ट्रीम नेम, अब यहाँ पे इसने मिस्टेक क्या किया है, जो बिग मिस्टेक है वो ये है, इक्वल टू नहीं आएगा। नल के साथ हमेशा कौन सा क्लॉज लगता है, इज क्लॉज लगता है। नल के साथ कौन सा क्लॉज लगता है, ऑलवेज इज क्लॉज से हम नल को चेक करते हैं, इक्वल टू कभी नहीं लगाते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना है। और स्ट्रीम नेम इक्वल टू, और यहाँ भी स्ट्रीम नेम इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, लाइक आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इज आएगा। ये दो मिस्टेक कर रखा था इसने। क्लास तक तो चलो चल भी जाएगा, लेकिन ये जो दो मिस्टेक है कमांड के साथ, ये मिस्टेक नहीं चलने वाले। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे डॉक नेम दिया हुआ है, कहता है सेलेक्ट डॉक नेम फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर डॉक नेम लाइक परसेंट वी। अब लाइक पैटर्न का क्वेश्चन है, पूछ रहा है वो नाम दिखाओ जिसके लास्ट में वी आया होगा, तो आउटपुट बताना है यहाँ पे। तो इसने क्या दिखाया, इसने सेलेक्ट डॉक नेम कहा है, तो आउटपुट जब भी दिखाने ना, तो सबसे पहले ये टेबल बनाना पड़ेगा इससे। अब इसमें वो कॉलम बताओ जो आउटपुट आ रहा है, तो कॉलम में आउटपुट क्या आ रहा है, डॉक नेम आउटपुट आ रहा है। कहां से पता चलेगा, तो इस जगह से पता चलेगा, वेयर डॉक नेम लाइक वी। अब जिसके नाम में लास्ट में वी आता है वो नाम सिर्फ एक ही है, तो क्या आउटपुट आएगा, संजीव। ठीक है, मेरे नाम में ही ऐसा संजीव है, उसी तरह से ये संजीव है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड के आंसर को चेक करो, सेलेक्ट डॉक नेम फ्रॉम डॉक नेम लाइक परसेंट ई, तो इसका परसेंट ई परसेंट, इसका मतलब हो गया एनीवेयर ई। ठीक है, तो इसको फिर से इसी तरह से टेबल बना दो, और यहाँ पे लिख दो डॉक नेम। टेबल जरूर बनाइएगा जब भी आउटपुट लिखिएगा, तो अगर मल्टीपल कॉलम्स होगा तो मल्टीपल हम बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से, है ना, मतलब इस तरह से खींच के हम ऐसे ऐसे डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। ओके, तो अब क्या होगा, वेयर परसेंट ई कह रहा है, तो देखो इस नाम में कहीं पे ई आया है, नहीं आया है। इस नाम में कहीं पे ई आया है, चेक करो, ई कहीं भी नहीं आया है। इस नाम में कहीं ई आया है, कहीं नहीं आया है। दीपक में आया है और संजीव में आया है, तो यहाँ पे तुम्हारा दो ही आउटपुट आएगा, दीपक एंड संजीव। किसी और नाम में देख लो कहीं ई आ गया हो, अविनाश में हो नहीं सकता, हरिहरन में हो सकता, विनायक में हो नहीं सकता, तो सही है। तो हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने ऊपर, है ना, थोड़ा सा स्टडी करना है, क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं। लास्ट क्वेश्चंस हैं ये, तो लास्ट क्वेश्चंस को चलो देख लेते हैं। सार्थक इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, क्रिएटेड अ टेबल क्लास, क्लास नाम का टेबल आपने क्रिएट किया है, 12 क्लास का बच्चा है ये। Grade is the one of the columns of this table. To find out details of students whose grade have not been entered, he wrote the following SQL. अब फिर से वही का समस्या आ गया, सारा चीज सही है, इसको क्या करना चाहिए था, यहाँ पे कहता है कि एरर फाइंड आउट करो। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहता है कि इसको क्या है, हेल्प्स ऑफ रन द क्वेरी एंड रिमूविंग द एरर्स फ्रॉम द, तो कुछ नहीं करना है आपको, इसका करेक्ट क्वेरी लिखना है। तो करेक्ट क्वेरी क्या बनेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट का है ना, तो डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब हो गया कि सारा चीज हमें बताना होगा। स्टार फ्रॉम क्लास, स्टार फ्रॉम क्लास, और वेयर, और मिस्टेक क्या है, इसने नल वैल्यू को कंपेयर किया, तो दो गलती कर दिया। एक तो नल को डबल कोट्स में डाल दिया, नल कभी भी डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखा जाता है, और दूसरा नल को कंपेयर करने के लिए हमेशा इज ऑपरेटर यूज होता है, तो क्या लिखोगे, वेयर ग्रेड इज नल। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जो भी करेक्शन करो ना उसे अंडरलाइन जरूर कर दिया करो, दैट इज द मेक अ हैबिट। ये हैबिट बहुत ही जरूरी है, इस हैबिट्स के बिना ना फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, अदरवाइज ये थोड़ा क्लियर हो जाता है कि आप कहना क्या चाहते हो। What is the purpose of drop table in MySQL? How it is different from the delete command? तो purpose of the drop table हम सभी को पता है, drop table से हम क्या करेंगे, हम entire table को delete कर देंगे, delete entire table, delete complete table, complete table हमारा क्या होगा, यहाँ पे delete हो जाएगा। ओके, और delete command से क्या होगा, delete command will delete records only, delete records only, records only, not a table, table बचा रहेगा, not a table, table यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, यहाँ पे टेबल के साथ रिकॉर्ड्स भी, कंप्लीट टेबल का मतलब हो गया विद रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, ये यहाँ जब भी डिलीट होगा तो कंप्लीट रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे सिर्फ आपका
रिकॉर्ड्स डिलीट होगा, टेबल एग्जिस्ट कर रहा होगा, मतलब इस तरह का एम्प्टी टेबल दिखने लगेगा इस केस में। लेकिन इस केस में क्या होगा, ये पूरा का पूरा टेबल खत्म हो जाएगा। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। थैंक यू। कोई डाउट्स हो तो प्लीज मैसेज कर देना आप लोग। ओके, कुछ बच्चों का अटेंडेंस मैंने नहीं लगाया है, इन बिटवीन यू हैव जॉइन द क्लास, तो टुमारो यू जस्ट रिमाइंड मी, आई फॉरगेट और नॉट। ठीक है, कल देख लेना एक बार अपने अटेंडेंस को। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर। Anyone want to say anything? You can